Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we're going to talk about the digestive system. So we'll begin with the organs of digestive system. Organs of digestive system fall into two main categories: the organs of alimentary canal and accessory digestive organs. The organs of the alimentary canal is also known as gastrointestinal tract or the gut. Its main function is to nourish the body, that is, to provide nutrients. Alimentary canal begins at the mouth and ends at the anus. These organs include the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and the large intestine. Digestion obviously occurs in the mouth, in stomach, and in the small intestine, while absorption mainly occurs in the small intestine only. Undigested wastes get excreted out in the large intestine. Then the accessory digestive organs. These include teeth, tongue, salivary glands, liver, gallbladder, and the pancreas. Teeth help in mechanically breaking down the food. The tongue helps in chewing the food, helps the teeth in chewing the food and in mixing the food with the saliva, and also in the swallowing of the food. The other accessory organs, that is the liver, the gallbladder, and the pancreas, they never come into direct contact with the food, but they secrete certain secretions, and those secretions help in chemical breakdown of the food when the food is in the duodenum. Digestive processes. The processes of digestion include 6 activities. Ingestion. Ingestion means to put the food in your mouth. जब हम निवाला मुंह में डालते हैं तो फूड को मुंह में डालना इंजेस्शन कहलाता है. Then after ingestion, the second process is propulsion. Propulsion is a process by which food moves through the alimentary canal. That is, when the food moves forward, that is propulsion, and this includes swallowing and peristalsis. Peristalsis is the alternate waves of contraction and relaxation of muscles in the organ walls, and because of this peristaltic movement, the food can move forward. Swallowing is a voluntary action, जो कि हमारे इख्तियार में होता है कि हम फूड को swallow करें या ना करें. But once the food is swallowed, then it becomes it is not voluntary anymore. It becomes involuntary. हमारे इख्तियार में नहीं होता. जब एक दफ़ा हम फूड को निगल लें तो फिर वो हमारे इख्तियार से निकल जाता है और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खुद ही आगे बढ़ने लगता है. Then the food undergoes the mechanical digestion. That is when the food is physically broken down. Then chemical digestion is there. That is different secretions that are being produced in the digestive system. These secretions, they act upon the food to chemically break it down into simpler form so that it can be absorbed. So after chemical digestion, after the mechanical and the chemical digestion, there is absorption and the food gets absorbed into the blood. And so after that, there is defecation. That is the undigested waste, the food that could not be digested completely and so could not be absorbed, that needs to be excreted out of the body, and that process is the defecation. So we'll start with the mouth. Mouth is also called the oral cavity or the buccal cavity. The food enters the oral cavity by way of mouth. In the oral cavity, there are teeth and tongue, and then there is saliva that enters there by the salivary glands. The function of teeth is chewing, that is, it physically breaks down the food. The tongue helps the teeth in chewing by gripping the food, and then it mixes the food with the saliva so that it can convert into a form that is known as bolus.
The upper side of the tongue contains the taste buds by which we taste our food. Salivary glands. The digestive secretion in the mouth is saliva, and the saliva is produced by 3 pairs of salivary glands. The parotid glands, which are right here, you can see, are just below and in the front of the ears, obviously on both sides. The submandibular glands are at the posterior corner of the mandible. Mandible is the jaw, the lower jaw. So it is at the posterior corner of the lower jaw. And the sublingual glands are present at the floor of the mouth. An average of 1 to 1.5 liters of saliva is secreted each day by these salivary glands. The presence of food in the mouth, its sight or smell, increases salivary secretions. When we think about the food, when we taste it, or when we smell it, or when we look at it, our salivary glands are activated and they produce more saliva so that it can help in making converting the food into bolus. The functions of saliva. So there are 6 functions of saliva basically. The first one is that the saliva contains salivary amylase. Amylases are enzymes that act upon the carbohydrates and convert it into simpler forms. So saliva contains salivary amylase, and that salivary amylase helps in digestion of the carbohydrate. Whatever carbohydrate may be present in our food, it gets acted upon by the salivary amylase. Then the saliva helps in swallowing of the food because it helps in lubrication. It moistens our food, and this lubrication of the food helps us in it softens the food, the softening of the food, and so it helps in swallowing. अगर सलाइवा नहीं हो तो बहुत चांस है कि फूड हमारे गले में, हलक में फंस जाए, बिकॉज लुब्रिकेशन नहीं होगी फूड की और हमारे माउथ की, और फूड जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ सलाइवा, और उसके हलक में फंसने के चांसेस होंगे. सो सलाइवा हेल्प लुब्रिकेट्स द फूड एंड सो इट हेल्प्स अस इन swallowing. Then saliva exert antibacterial action. How? It contains an enzyme that is called lysozyme. Lysozyme acts upon bacteria. It acts upon the peptidoglycan that is in the cell wall of the bacteria. It breaks down the peptidoglycan, so it ruptures the cell wall, and so it kills the bacteria. Secondly, saliva contains lactoferrin. Lactoferrin binds to iron. That iron is needed by bacteria for multiplication. So if there is no iron, there will be no bacterial multiplication. Its number will not increase, and obviously that becomes antibacterial. Then thirdly, saliva helps in rinsing our food in our mouth. Saliva rinses our mouth, washes it down, so that if there are any bacteria present, they can be washed away so that they cannot cause infection. Fourth function of saliva, it acts as a solvent for molecules that stimulate taste buds. As we've talked before, I said that the tongue contains taste buds, and these taste buds are activated by the saliva. Saliva acts as a solvent to activate the taste buds. अगर सलाइवा नहीं होगा तो हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स मौजूद हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे, और अगर टेस्ट बड्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तो हमें हमारे फूड का में कोई जायका नहीं लगेगा, वो हमें बदजायका लगता है अगर टेस्ट बड्स स्टिमुलेट ना हो. तो सलाइवा जो है वो टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारा फूड टेस्टी लगे, हमें डिफरेंट टेस्ट्स फील हों. इफ़ बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन देयर इज़ नो सलाइवा इन आवर माउथ लाइक इन फीवर, then our taste buds are not stimulated and we cannot taste the food. Fifth function, saliva helps in talking. It helps us to talk, and when there is no saliva it becomes difficult to talk, so saliva helps in speech.
Sixth function, the saliva is rich in bicarbonate ions, and these bicarbonate ions act as buffers to neutralize the environment of the mouth. Our food may be acidic, and that acidic food can damage the cells present in our oral cavity. So the saliva, because it contains bicarbonate ions, it neutralizes that food, and it neutralizes the environment of our mouth. Secondly, obviously there are bacteria present in our mouth as normal flora, and those bacteria can cause fermentation and produce acid, and that acidity again will obviously damage the cells present in our oral cavity, and so for that saliva is present, which neutralizes the mouth environment. Although there are these very important 6 functions of saliva there, but even then saliva is not essential for digestion or for absorption. If there is no saliva, will not be able to talk properly, or will face difficulties in swallowing and in tasting the food, but there still will be the digestion of the food. Food will still get digested. यानी अगर सलाइवा नहीं होगा तो फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फूड फिर भी डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा. ऑल्दो कि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज मौजूद है, लेकिन अगर सलाइवा ना हो किसी वजह से तो फिर भी बहुत सारे आगे जब हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं. तो अगर सलाइवा नहीं भी हो तो भी फूड की डाइजेशन में या उसकी एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी सारे मसले होंगे कि हम बोल नहीं सकेंगे इजीली, हमें बोलने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ ड्राई माउथ, एंड आवर फूड विल नॉट फील टेस्टी, एंड swallowing में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होगा. Now let's see what are the different conditions because of which there may not be any saliva. The condition, the dry mouth condition in which there is no saliva in our mouth is known as xerostomia. जीरोस्टोमिया कहते हैं ड्राई माउथ कंडीशन को, जब सलाइवा ना हो. और सलाइवा ना होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? लाइक देयर मे बी फीवर, or there may be trauma to ducts, the salivary ducts, or the trauma to salivary glands. They may be suppressed. There may be it may be because of cancer, or it may be because of chemotherapy. The chemotherapy suppresses our different functions in our body and can suppress the salivary glands to produce saliva, or it may be as a side effect to drugs. Because of side effect to drugs, the salivary glands may get suppressed and not produce any saliva. So such a condition in which there will be no saliva in our mouth is known as xerostomia. Then after the mouth, food enters the esophagus. Esophagus secretes mucus, and it is a channel for transporting the food from pharynx to the stomach. The food that is in the esophagus is now known as bolus, and it moves by peristalsis. Mucus has 2 important functions. The first one is that it lubricates the food. It helps in peristalsis. When it lubricates the food, it helps the food to move through the esophagus. If there is no mucus, if there is no lubrication, the food may get stuck in that passage, in that esophagus channel. So mucus is there for lubricating the food so that food can easily move through the esophagus and reach the stomach. Secondly, the mucus contains bicarbonate ions, and those bicarbonate ions help in neutralizing the esophagus. If there is antiperistalsis, that is vomiting, if a person vomits, contents from the stomach comes back into the esophagus, and when the contents from the stomach comes back through the esophagus, they are going to bring the acidity of the stomach along with the food content, and because of that acidity, the cells of the esophagus can get damaged. So to protect
those cells from the stomach acidity. In case of gastric reflux, the mucus is there, the cells of the epithelial cells of the mucus of the esophagus secrete mucus, and that mucus is rich in bicarbonate ions, and so it neutralizes, it acts as a buffer and it neutralizes that acidity. Deglutition. Deglutition means swallowing. That is when we swallow the food, when the food moves from mouth to the esophagus and then to the stomach. The whole process of deglutition, that is of swallowing, takes about 4 to 8 seconds for solid or semi-solid food and about 1 second for soft or liquid foods. Deglutition is obviously a very complex process, and it involves the muscles of the tongue and the muscles of the pharynx and the esophagus. It is helped by the presence of mucus and the saliva. There are 3 phases in deglutition: the voluntary phase, the pharyngeal phase, and the esophageal phase. So the first one is the voluntary phase. This voluntary phase is also known as the oral phase or the buccal phase. This voluntary phase takes place when the food is present in the mouth, and so it is pushed back into the oropharynx. So here we can see that the food is present in the oral cavity. This green colored food is present in the oral cavity, and at this time the respiratory tract is open and the air can move through the nostrils and through the nasal passages into the trachea. This is the trachea, and this passage back is the esophagus, right? So this is the buccal phase, the voluntary phase. Then comes the pharyngeal phase, when the food moves into the pharynx. So for that, when the food needs to go into the pharynx, when the food is needed to be swallowed, the passages of the respiratory tract are closed. This here is the ulva, and this ulva moves back so that the food cannot move into the nasopharynx, into the nasal openings. ऐसा ना हो कि फूड ये मूव करके नेज़ल ओपनिंग्स में चला जाए, उल्वा इस को बंद कर देता है, इस ओपनिंग को बंद कर देता है. ऑल्सो दिस इज़ द epiglottis, and this epiglottis blocks the entrance of the trachea. ट्रैकिया का रास्ता एपिग्लॉटिस बंद कर देता है ताकि जिस वक्त फूड को स्वॉलो किया जाए तो वो इसोफेगस में जाए और वो ट्रैकिया में ऑब्वियसली ना चला जाए. सो नाउ both the passages towards the nostrils and towards the trachea and the lungs are closed, and so for a very short period of time we are not breathing. The openings towards the respiratory tract, towards the lung are closed, and so we're not breathing. This is known as deglutition apnea. Deglutition apnea. Deglutition apnea means when for a very brief period of time we are not breathing and all the passages to the respiratory tract are closed. So then when the food moves into the pharynx, the esophageal phase starts. The esophageal sphincter relaxes. It is a muscle, and between the pharynx and the esophagus, this esophageal sphincter relaxes, and so it allows the food to move from the pharynx into the esophagus. In the esophagus, the food moves by peristalsis towards the stomach. When it is near the stomach, there is another muscle that is known as gastroesophageal sphincter, and this gastroesophageal sphincter relaxes so that the food can move from the esophagus into the stomach. This is the whole process of the deglutition, the swallowing of the food when the food moves from our mouth to the pharynx and into the esophagus, so that from the esophagus the food can reach into the stomach. I have shared an animated video of deglutition on LMS, and if you watch it, it will become easy for your understanding.
Uh, Stomach. Stomach is an organ, a J-shaped organ that is present below the diaphragm in the abdomen. It connects the esophagus to the duodenum. There are basically three functions of stomach. The first one is that it acts as a storage organ. स्टमक जो है वो एक स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे एक्ट करता है और फूड को स्टोर करता है. स्टमक फूड को उस वक्त तक स्टोर करता है जब तक कि डियोडेनम रेडी ना हो जाए फूड रिसीव करने के लिए. सो इस तरह से स्टमक में फूड रहता है एंड स्लोली फूड जो है वो स्टमक से इसोफेगस में मूव करता स्टमक से डियोडेनम में मूव करता जाता है. The stomach is highly flexible and empty stomach has a capacity of 50 ml and it can swell up to 4 liters. Stomach highly flexible है. एम्प्टी स्टमक की कैपेसिटी 50 ml होती है, लेकिन उसको जब फूड से भरा जाए तो इट कैन स्वेल अप टू 4 liters एंड दैट मच अमाउंट ऑफ फूड रिमेन्स स्टोर्ड इन द स्टमक एंड स्लोली इट मूव्स फ्रॉम द स्टमक इन टू द duodenum. All the food at a time cannot एंटर इन टू द डियोडेनम. सारा का सारा 4 लीटर फूड या जितना भी फूड हमारे स्टमक में मौजूद है वो सारा का सारा डियोडेनम में एट ए टाइम नहीं जा सकता, क्योंकि डियोडेनम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डियोडेनम में स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी नहीं है और स्टोरेज एबिलिटी नहीं है. सो स्लोली जो है वो स्टमक से मूव करता जाता है फूड डियोडेनम में. डियोडेनम उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जब डियोडेनम में स्पेस बनती है तब फिर थोड़ा सा फूड स्टमक से डियोडेनम में स्लोली जाता रहता है. सो for that period of time stomach stores the food. Second function of stomach is that it breaks down the food physically. फिज़िकल ब्रेक डाउन करता है फूड को. स्टमक के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब करते हैं तो फूड को फिज़िकली ब्रेक डाउन करते हैं. एंड थर्डली स्टमक प्रोड्यूसेस सिक्रीशंस लाइक पेप्सिन एंड HCl एंड दीज सिक्रीशंस आर देयर टू केमिकली ब्रेक डाउन द फूड, ताकि फूड को प्रोटीन स्पेशली प्रोटीनेशियस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं केमिकली. सो स्टमक जो है वो मैकेनिकली भी डाइजेस्ट करता है फूड को और केमिकली भी डाइजेस्ट करता है. जब ये केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन फूड के ऊपर होती है तो फूड कन्वर्ट होता है इनटू अ फॉर्म दैट इज़ नोन एज काइम. जब तक फूड काइम में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक फूड काइम नहीं बनेगा, उस वक्त तक फूड डियोडेनम में नहीं जा सकता. Anatomy of the stomach. So there are basically 4 parts of the stomach. The first one is the cardia. Cardia is attached to the esophagus. Then there is fundus, this dome-shaped area. The main part is the body, and then the lower part is called pylorus. In the pylorus, the upper part, the one with the larger diameter, is called the pyloric antrum, the wider portion, and the smaller portion, the narrower portion, this one is called the pyloric canal. And then there is a muscle in between the duodenum and the pylorus that is called pyloric sphincter. Through this pyloric sphincter, food from the pylorus moves into the duodenum. Slowly it moves into the duodenum. In the stomach there are smooth muscle cells that perform contraction relaxations, and these contractions, because of these contractions, peristaltic waves are produced, and those peristaltic waves move the food forward. पेरिस्टालसिस की मदद से फूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है ताकि पाइलोरस में पहुंचे और फिर वहाँ से डियोडेनम में जा सके. पर मिनट देयर आर 3 contractions of these peristaltic waves, and because of those peristaltic waves the food move forward. The food is stored in the fundus in the body. Basically फूड जो है वो स्टोरेज होती है उसकी फंडस और बॉडी में, और पाइलोरस में फूड जो है काइम बनता है, और जब फूड काइम बनता है तो फिर वो डियोडेनम में एंटर होता है. अब फूड फंडस और बॉडी में क्यों स्टोर होता है और यहाँ पे काइम क्यों नहीं बनता और पाइलोरस में काइम क्यों बनता है? This wall of the stomach, which contains the muscle cells and which are responsible for contraction and relaxation, these muscles are there is a thin layer of these muscle cells in the fundus and body.
ये जो मसल सेल्स जो स्टमक की वॉल में मौजूद हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, फंडस और बॉडी में इन मसल सेल्स की थिन लेयर है, जबकि पाइलोरस में एक थिक लेयर है इन मसल सेल्स की। क्योंकि फंडस और बॉडी में इन सेल्स की लेयर थिन है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस भी वीक होते हैं, और इस वीक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फूड जो है वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्वियसली उस पर एक्शन नहीं होता, केमिकल्स यानी कि सिक्रीशंस के साथ बहुत कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होता, फिज़िकली बहुत स्ट्रांगली ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए वो कायम नहीं बन पाता, लेकिन सिर्फ स्टोर होके रहता है। पाइलोरस में क्योंकि स्मूथ मसल सेल्स की लेयर थिक है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस भी स्ट्रॉन्ग हैं, और जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो फूड को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं फिज़िकली, और फिर वो केमिकली सिक्रीशंस के साथ मिक्स करते हैं, तो केमिकली भी ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से पाइलोरस में फूड कायम बनता है। जब फूड कायम बनता है तो फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्लोली वो फूड आगे बढ़ता है। द पाइलोरस कैन होल्ड 30 ml of chyme at a time, and out of those 30 ml, only a few ml can be pushed through the pyloric sphincter and into the duodenum. Gastric emptying. अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करता है, और जब तक ड्यूोडेनम रेडी नहीं होगा फूड को रिसीव करने के लिए, उस वक्त तक फूड स्टमक में स्टोर रहेगा और ड्यूोडेनम में नहीं जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस, अबाउट द फैक्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्टीइंग ऑफ द स्टमक। क्या फैक्टर्स हैं कि जो स्टमक को जल्दी एम्प्टी करने में हेल्प करते हैं? So there are certain factors that depend upon the stomach itself, and then there are certain factors that depend upon the duodenum. पहले factors of the stomach की बात करते हैं. The first one is the amount of chyme, the volume of the chyme. The more the volume of chyme in stomach, the faster will be the emptying of stomach. स्टमक में जितना ज़्यादा काइम होगा उतनी ही जल्दी स्टमक एम्प्टी होगा, उतनी ही जल्दी फूड जो है वो स्टमक से ड्यूोडेनम में मूव करेगा, और उतनी ही जल्दी स्टमक जो है वो एम्प्टी होता जाएगा। सेकेंड इज़ द डिग्री ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ फूड। स्टमक में जितना फ्लूइड फूड होगा, सेमी सॉलिड फूड होगा, यानी जितनी नरम ग़िज़ा होगी, उतनी ही जल्दी वो काइम बनेगा, और जितनी जल्दी वो काइम बनेगा उतनी जल्दी वो ड्यूोडेनम में जाएगा, तो स्टमक भी जल्दी जल्दी एम्प्टी होता जाएगा। सो डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ फूड, द मोर अ फूड इज़ फ्लूइड फॉर्म ऑफ फूड इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक, द फास्टर विल बी इट्स एम्प्टिंग। जितना फ्लूइड फॉर्म फूड का होगा, जितना नरम ग़िज़ा होगी, सेमी सॉलिड फूड होगा, उतनी ही जल्दी स्टमक एम्प्टी होता जाएगा। देन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट डिपेंड अपॉन द ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम के फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे स्टमक में बहुत फ्लूइड फूड हो, सेमी सॉलिड फूड हो, और बहुत काइम का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब तक ड्यूोडेनम रेडी नहीं होगा फूड को रिसीव करने के लिए, उस वक्त तक फूड स्टमक से ड्यूोडेनम में मूव नहीं कर सकता। सो द फर्स्ट फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूोडेनम इज़ द अमाउंट ऑफ फैट। फ़ैट जो कि हम अपनी डाइट में लेते हैं, फैटी फूड, वो फैटी फूड जब ड्यूोडेनम में पहुंचता है तो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फूड, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। फैट को ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है बिकॉज देयर इज़ ओनली वन एंजाइम इन द होल डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज़ ओनली वन एंजाइम फॉर फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के लिए बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं, लेकिन फ़ैट के लिए सिर्फ एक सिंगल एंजाइम है। क्योंकि फ़ैट के लिए सिर्फ एक सिंगल एंजाइम है, इसलिए फ़ैट को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर ड्यूोडेनम में फ़ैट मौजूद हो अनडाइजेस्टेड, जब तक वो फैटी फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं होगा, और फूड स्टमक से ड्यूोडेनम में नहीं आ सकता। सो द मोर द अमाउंट ऑफ फैट in the duodenum, the slower will be the emptying of stomach. Then acid. Duodenum is unable to tolerate acidity. Duodenum acidity tolerate नहीं कर सकता। क्योंकि duodenum acidity tolerate नहीं कर सकता, इसीलिए जब स्टमक से
एसिडिक काइम जब स्टमक से फूड ड्यूडेनम में जाता है तो ऑब्वियसली वो फूड अपने साथ स्टमक की एसिडिटी भी लेकर जाता है। स्टमक में तो एसिड मौजूद है। जब फूड स्टमक से ड्यूडेनम में जाए तो अपने साथ स्टमक की एसिडिटी लेकर जाएगा। ये जो एसिडिक काइम जब ड्यूडेनम में जाएगा तो वो ड्यूडेनम के सेल्स को एसिडिक कर देगा, ड्यूडेनम के एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देगा, और ड्यूडेनम में एबिलिटी नहीं है उस एसिडिटी को टॉलरेट करने की, तो ड्यूडेनम के सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर और फूड और एसिडिक काइम स्टमक से ड्यूडेनम में आता रहे तो ड्यूडेनम हाईली एसिडिक हो जाएगा और उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा फूड यानी कि काइम जो कि एसिडिक है, जिसमें एसिड मिक्स हुआ है जो कि स्टमक में मौजूद था, वो एसिडिक काइम स्मॉल अमाउंट में ड्यूडेनम में जाए और ड्यूडेनम उसको पहले न्यूट्रलाइज करे। जब ड्यूडेनम पिछले एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करे, एसिडिटी को ख़त्म कर दे, तो फिर और एसिडिक काइम आए स्टमक से ड्यूडेनम में। सो द अमाउंट ऑफ एसिड इन द ड्यूडेनम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। जितना ज़्यादा एसिडिक काइम होगा ड्यूडेनम में, उतना ही स्लो होगी स्टमक की एम्प्टिंग। देन ऑस्मोलैरिटी मीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस की बात हम कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की बात हम कर रहे हैं। सो व्हेन द फूड इज़ डाइजेस्टेड in the duodenum, when the food is broken down into simpler forms, the solute to solvent concentration is disturbed, the osmotic balance is disturbed, and so it is important that the food that is digested into smaller parts that be absorbed first and then only the other food can be digested. ड्यूडेनम में डाइजेशन हो रही है, एंजाइम्स मौजूद हैं, वो डाइजेशन जब ड्यूडेनम में होगी तो वो फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। जब फूड स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन होगा तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट। तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द ब्लड प्लाज्मा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो टू मेंटेन दिस ऑस्मोटिक बैलेंस ज़रूरी है कि वो फूड जो डाइजेस्ट होकर स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है पहले वो एब्जॉर्ब हो जाए। जब वो फूड एब्जॉर्ब होगा तब उसके बाद और फूड स्टमक से आ सकता है ताकि फिर वो और डाइजेशन हो। डिस्टेंशन मीन्स स्वेलिंग अप, स्ट्रेचिंग एबिलिटी। जैसे हमने पहले कहा था कि स्टमक में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेचिंग की एबिलिटी है और वो फूड को स्टोर करता है, लेकिन ड्यूडेनम के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फूड अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। सो अगर स्टमक से बहुत सारा फूड अंदर आने लगे ड्यूडेनम में, तो वो तो ड्यूडेनम के पास एबिलिटी नहीं है उसको स्टोर करने की उसके पास तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट कैन नॉट स्वेल अप टू स्टोर ऑल दैट फूड। सो बिकॉज ऑफ दैट only a small amount of food can enter from the stomach into the duodenum, and first that food is digested and it is absorbed, and only then more food can enter from stomach into intestine. क्योंकि ड्यूडेनम में स्ट्रेचिंग एबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए जब स्टमक से ड्यूडेनम में फूड आता है तो वो डिस्टेंड हो जाता है, और जब तक वो फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं होगा और फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं आ सकेगा। सो ऑल द फैक्टर्स दैट डिपेंड अपॉन द ड्यूडेनम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक के जो फैक्टर्स हैं, अमाउंट ऑफ काइम एंड द डिग्री ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ फूड, बोथ दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, while the factors of the duodenum are inversely proportional to the emptying of the stomach. Histology. So each day, stomach secretes about 2 liters of gastric juice. The cells that secrete the gastric juice are present in the lining of the stomach. Throughout this stomach lining,
दैट इज़ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, म्यूकोजल सरफेस ऑफ द स्टमक, ये सरफेस ऑफ द स्टमक में सेल्स मौजूद हैं, और ये जो सेल्स हैं दीज आर लाइक डीप पॉकेट्स। वो पॉकेट्स जैसे हमारे कपड़ों में इंटरनल पॉकेट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस स्टमक के गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, इसके सरफेस के में सेल्स जो है वो पॉकेट्स के फॉर्म में मौजूद हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेल्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द अपर पार्ट जो कि फंडस और बॉडी का पार्ट बनाता है, दैट इज़ नोन एज ऑक्जेंटिक म्यूकोजा, एंड द लोअर पार्ट जो कि पाइलोरस का पार्ट बनाता है, दैट इज़ नोन एज पाइलोरिक ग्लैंड एरिया। थ्रू आउट दिस म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, चाहे ऑक्जेंटिक म्यूकोजा हो चाहे पाइलोरिक ग्लैंड एरिया हो, थ्रू आउट दिस सर्फेस दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक। पूरे सर्फेस में इस तरह से सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, पॉकेट्स के फॉर्म में। सो दीज सेल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो सेल्स हैं इनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक पिट एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड एरिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। And different type of cells are present in the gastric pit and the gastric gland. In the gastric pit there are mucus cells, एपिथीलियम में म्यूकस सेल्स हैं, और ये म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंट्री पे देर आर म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट। ये जो म्यूकस सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स हैं ये सिक्रीशन करते हैं म्यूकस की। ये जो म्यूकस सिक्रीशन है दिस इज़ एन अल्कलाइन रिच सिक्रीशन, और ये जो अल्कलाइन रिच सिक्रीशन है ये हमारे सेल्स को HCl और एंजाइम से डैमेज होने से बचाते हैं। देन देर आर पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स। These cells are present here. The chief cells are more numerous and they are present in the gastric gland area. The parietal cells they secrete HCl, and so because of that HCl the pH of the stomach falls between 1.5 to 3.5. Then there are certain cells, a group of cells that are called enteroendocrine cells. एंडोक्राइन सेल्स हैं तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन या पैराक्राइन, एंडोक्राइन या पैराक्राइन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हम उस न्यूरोट्रांसमीटर हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, एंड दीज केमिकल मैसेंजर्स ट्रांसमिट अ मैसेज फ्रॉम नर्व सेल टू अ टारगेट सेल. So acetylcholine is a neurotransmitter, and so it stimulates the parietal cells, chief cells, G cells and the ECL cells. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं. एसिटाइलकोलिन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि नर्व सेल से प्रोड्यूस होता है और टारगेट सेल्स के ऊपर अटैक करता है. इस केस में एसिटाइलकोलिन के केस में टारगेट सेल्स कौन से हुए? पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, जी सेल्स एंड ईसीएल सेल्स. देन सेकेंडली एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स एक तो एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंडली एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन again is a hormone that acts upon the parietal cells and chief cells. Gastrin increases the secretion of acid, the HCl, and the enzyme. Histamine increases the secretion of HCl, and then there is somatostatin. Somatostatin is an inhibitory hormone. इनहिबिटरी हार्मोन है और ये जो सोमाटोस्टैटिन है दिस एक्ट्स एज अ नेगेटिव फीडबैक फैशन एंड इट इज़ इनहिबिटरी एंड इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ HCl. सोमाटोस्टैटिन एक ऐसा केमिकल है
जो स्टिमुलेटरी नहीं है बल्कि इनहिबिटरी है, और उन सारे सेल्स की स्टिमुलेशन को रोकता है जो HCl की सिक्रीशन इंक्रीज कर रहे थे. सो इनहिबिटरी है, नेगेटिव फीडबैक फैशन में एक्ट करता है. सो हेयर वी हैव दी सेल्स. फर्स्ट द म्यूकस सेल्स. म्यूकस सेल्स जो हैं वो, जैसे कि हमने कहा म्यूकस सेल्स हैं और म्यूकस नेक सेल्स हैं, वो सिक्रीशन करते हैं म्यूकस. जब हम सेल की बात करते हैं, रिमेंबर जब हम सेल की बात करते हैं तो देयर इज़ स्पेलिंग इज़ MUCOUS, बट जब हम सिक्रीशन की बात करते हैं तो स्पेलिंग है MUCUS. दोनों को हम म्यूकस कहते हैं लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंट है. फॉर सेल्स इट इज़ MUCOUS एंड फॉर द सिक्रीशन इट इज़ MUCUS. ऑलराइट. So mucus cells secrete alkaline secretion that is called mucus, and this mucus obviously, since it is alkaline, it protects the cell, it protects the cells from the acid, it protects the cell from the enzyme, and obviously, and also it protects the cells, mechanical protection भी करते हैं, physical protection भी देते हैं. Then there are chief cells. Chief cells produce a secretion that is called pepsinogen. Pepsinogen is an inactive form, and when this pepsinogen gets activated, it is converted into a form that is known as pepsin. Here the chief cells produce the pepsinogen, and pepsinogen, when it gets activated, it gets converted into a form that is known as pepsin. Pepsinogen को कौन एक्टिवेट करता है? Pepsinogen को initially HCl एक्टिवेट करते हैं. जब पेराइटल सेल्स HCl प्रोड्यूस करते हैं तो वो HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. बट once a small portion of this pepsinogen is activated and gets converted into pepsin, the rest of the pepsinogen is activated by the pepsin itself. यानी सेल्फ कैटालिसिस के तौर पे शुरू में तो पेप्सिनोजन जो सिक्रीट हो रहा था चीफ सेल से, शुरू में उस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया HCl ने, बट एक दफ़ा थोड़ा सा पेप्सिनोजन एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन गया तो बाकी सारा का सारा पेप्सिनोजन खुद ही, ये पेप्सिन खुद ही जाके अपने पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और पेप्सिनोजन को और पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहता है. ठीक, दिस इज नोन एज ऑटोकैटालिसिस. So the chief cells, they secrete pepsinogen, and the stimuli for the secretion is acetylcholine and gastrin. Acetylcholine और gastrin chief cells को stimulate करते हैं, और जब वो chief cell को stimulate करते हैं तो chief cells pepsinogen produce करता है, और pepsinogen जब pepsin में convert हो जाता है active form में तो वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है. पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. देन देयर आर पेराइटल सेल्स. पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द स्टिमुलाई फॉर secretion of HCl are acetylcholine, gastrin and histamine. All these things, acetylcholine, gastrin and histamine, they stimulate parietal cells. ये एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन जो हैं वो पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जब पेराइटल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो HCl प्रोड्यूस करते हैं. जब HCl प्रोड्यूस होता है तो एक तो वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और उसके अलावा प्रोटीन की डीनेचुरेशन करता है, यानी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है. वो प्रोटीन जो हमने फूड में लिया था, ठीक, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. एंड थर्डली, क्योंकि एसिडिक है और बैक्टीरिया इतनी हाई एसिडिटी टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी करता है और बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करता है HCl. पेराइटल सेल एक और भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर. जब हमने RBCs पढ़े थे तो हमने कहा था कि पर्निशियस एनीमिया की बात हमने की थी, और हमने कहा था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो पर्निशियस एनीमिया कॉज करती है, और हमने ये भी कहा था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है बिकॉज ऑफ अ फैक्टर दैट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर. क्योंकि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए
एक सब्सटेंस की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो बोन मैरो में नहीं जाएंगे और वो सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। इस तरह से जब फाइनली RBCs बनेंगे वो इमेच्योर वो एबनॉर्मल RBCs होंगे, लार्जर देन नॉर्मल साइज़, ठीक। और ऐसे RBCs जो हैं वो जल्दी उनकी लिसिस हो जाती है एंड सो एनीमिया कॉज होता है। सच टाइप ऑफ एनीमिया इज़ नोन एज पर्निशियस एनीमिया। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेराइटल सेल्स। देन देयर आर सम एंडोक्राइन और पैराक्राइन सेल्स। पैराक्राइन सेल्स जो हैं वो सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वो हार्मोन सिर्फ नियर बाय सेल्स पे एक्ट करता है। एंडोक्राइन और पैराक्राइन में ये फ़र्क है कि पैराक्राइन सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन ग्लैंड के अराउंड नियर बाय सेल्स पे ही एक्ट कर सकता है, जबकि एंडोक्राइन जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकता है। सो देयर आर सम एंडोक्राइन और पैराक्राइन सेल्स। The first one is the enterochromaffin like cells, ECL cells जिसे हम कहते हैं। ECL cells जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक सिक्रीशन दैट इज़ नोन एज हिस्टामिन। हिस्टामिन इज़ अ हार्मोन, ECL cells प्रोड्यूस करते हैं और these ECL cells are stimulated by acetylcholine and by gastrin. Acetylcholine और gastrin चीफ सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, पेराइटल सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, साथ साथ ECL सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब ECL सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन देन गोज एंड स्टिमुलेट पेराइटल सेल्स। जब पेराइटल सेल्स को हिस्टामिन स्टिमुलेट करते हैं तो हिस्टामिन तो पेराइटल सेल्स HCl प्रोड्यूस करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है और वो फिर अपने एक्शंस करते हैं। देन देयर आर G सेल्स। G सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है दैट इज़ नोन एज गैस्ट्रिन। These G cells are stimulated by protein products and by acetylcholine. जब हम प्रोटीनेशियस फूड खाते हैं, ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, तो ये प्रोटीनेशियस फूड जब स्टमक में जाता है तो ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स G सेल्स को जो कि स्टमक में मौजूद हैं उन G सेल्स को स्टिमुलेट करता है। यानी जब आपने फूड में प्रोटीन खाया, प्रोटीनेशियस फूड खाया, वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स G सेल को स्टिमुलेट करेंगे। उसके अलावा एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी G सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और जब वो G सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो G सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन एंड देन गैस्ट्रिन goes and stimulates parietal cells, chief cells and ECL cells. Then there are D cells. D cells produce a paracrine that is known as somatostatin. और हमने अभी कहा कि somatostatin जो है वो एक inhibitory substance, inhibitory secretion है. D cells are stimulated in response to acid. जब acid ज़्यादा produce होता है, these D cells are present in the stomach and also in the duodenum. ठीक, so ये क्या करते हैं कि जब ये एसिड की रिस्पॉन्स में डी सेल स्टिमुलेट होते हैं, जब HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो, जब स्टमक बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करने लगे और वो HCl जो है फूड के साथ साथ वो काइम के साथ साथ ड्योडेनम में भी चला जाए और वो इन्वायरमेंट को एसिडिक कर दे, हाईली एसिडिक कर दे, तो ये एसिड डी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब डी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो सोमाटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं और वो सोमाटोस्टैटिन जो है जाके इनहिबिट करता है, बाकी सारे सेल्स स्टिमुलेट कर रहे थे, ये इनहिबिट कर रहे हैं। सोमाटोस्टैटिन इनहिबिट करता है पेराइटल सेल्स को, जी सेल्स को एंड ECL सेल्स को। जब जी सेल्स इनहिबिट होंगे तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस नहीं होगा, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो पेराइटल सेल्स को, चीफ सेल्स को और ECL सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा। जब ECL सेल्स इनहिबिट होंगे तो हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, जब हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फिर पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर सकेंगे और जब पेराइटल सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तो वो HCl प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। जब HCl प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो कंट्रोल में आएगी, वो कम हो जाएगी। जैसे ही एसिडिटी कम होगी डी सेल्स की स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाएगी। जब डी सेल्स की स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाएगी तो सोमाटोस्टैटिन की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी।
तो वो जो इनहिबिटरी एक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। सो द रेस्ट ऑफ द सेल्स वर स्टिमुलेटरी while these cells were inhibitory. म्यूकोजल बैरियर, स्टमक जो है हमने जैसे देखा कि बार बार पेराइटल सेल स्टिमुलेट हो रहे हैं और HCl जो है वो सिक्रीट हो रहा है। जो बार बार HCl सिक्रीट हो रहा है उसकी वजह से स्टमक का pH जो है इट इज़ बिटवीन 1.5 to 3.5। इतनी हाई एसिडिटी अगर हमारी बॉडी में कहीं और हो तो हमारी बॉडी के सेल्स उसको टॉलरेट ना कर सकें, लेकिन स्टमक में कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इस हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर पाता है। सो लेट्स सी कि ऐसी क्या ख़ास बातें हैं स्टमक के सेल्स में कि वो इतने हाई एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट कर पाता है। द गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स आर इम्पर्मिएबल टू हाइड्रोजन सो दैट HCl कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल। ये जो स्टमक के सेल्स हैं, these cells they are impermeable टू हाइड्रोजन। ये जो सेल्स हैं ये हाइड्रोजन आयन से इम्पर्मिएबल है। अगर हाइड्रोजन आयन से इम्पर्मिएबल है तो इसका मतलब HCl क्रॉस नहीं कर सकता। HCl से इम्पर्मिएबिलिटी होगी, HCl इनसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। जब तक HCl इनको पेनिट्रेट नहीं करेगा इंटरनल सेल्स की तरफ नहीं बढ़ सकता, स्टमक में अंदर नहीं घुस सकता, और जब तक अंदर नहीं जाएगा इंटरनल सेल्स को डैमेज नहीं कर सकेगा। Secondly, the cells are joined by tight junctions that prevent HCl from penetrating between them, ठीक। यानी कि दो सेल्स आपस में इतनी टाइटली जॉइंड हैं कि ये HCl इनके बीच में से भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। उसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, स्लोली अगर वो उसके ऊपर एक्ट भी करे तो भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो पेनिट्रेट कर पाए, यानी अपना जो है वो इन सेल्स को डैमेज करे और पेनिट्रेट करके अंदर चला जाए। इट कैन नॉट, दीज सेल्स आर सो टाइटली जॉइंड टुगेदर दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दिस HCl to penetrate between these cells and damage the internal cells. Then mucus is being produced. ये जो सेल्स हैं, जैसे हमने कहा था ना, म्यूकस सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स हैं जो कि म्यूकस की सिक्रीशन कर रहे हैं। ये जो म्यूकस की सिक्रीशन हो रही है, ये म्यूकस फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से प्रोटेक्ट करता है सेल्स को। फिजिकली भी बैरियर, यानी इतना थिक है ये म्यूकस कि फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, और ये HCl इस म्यूकस में से पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इस म्यूकस से पेनिट्रेट करेगा तो सेल्स तक बढ़ेगा, और सेल्स तक पहुंचेगा तभी सेल्स को डैमेज कर सकेगा। सेकेंडली, ये जो म्यूकस है ये अल्कलाइन है, और इसकी अल्कलिनिटी की वजह से इस म्यूकस का pH इट इज़ 7। ऑल्दो के स्टमक में जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में HCl की वजह से pH 2 हो, लेकिन इन सेल्स के अराउंड pH जो है म्यूकस की वजह से 7 होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट the mucus coating, it protects these cells physically and chemically. And then there are stem cells present that replace these cells in every 3 to 6 days. हर 3 से 6 दिन के बीच में ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये इनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, आउटरमोस्ट सेल्स हैं, ये शेड होते हैं और सेल्स जो हैं इनकी जगह बनने लगते हैं। सो अगर ये डैमेज HCl कुछ डैमेज कर भी पाए, फिर भी क्योंकि बिटवीन एवरी 3 to 6 days these cells are replaced with new cells, so ये जो है एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है और हमारे स्टमक के सेल्स जो हैं वो डैमेज नहीं हो पाते। Now let's talk about the mechanism of HCl secretion. हमने कहा कि पेराइटल सेल्स जो हैं वो HCl secrete कर रहे हैं। पेराइटल सेल्स HCl secrete करते हैं in response to acetylcholine, histamine and gastrin. ये जो 3 हार्मोन्स हैं ये इस पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जब पेराइटल सेल स्टिमुलेट होता है तो वो HCl प्रोड्यूस करता है। Now this HCl is produced separately, हाइड्रोजन अलग, फ्लोरीन अलग, और उसके बाद ल्यूमेन में जाने के बाद ये HCl कंबाइन होके, ये H और Cl के आयंस जो हैं कंबाइन होके HCl बनाते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैकेनिज्म है जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ वाटर एंड देन देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पेराइटल सेल में मौजूद है,
These combine together, they react करते हैं in the presence of an enzyme that is known as carbonic anhydrase. And this, in the presence of this carbonic anhydrase, water and carbon dioxide react together to produce H2CO3. Then this H2CO3 is dissociated into HCO3 and hydrogen, bicarbonate ions and hydrogen ions. ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये तो सेल से बाहर चले जाते हैं, ल्यूमेन में चले जाते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि सेल के ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है और सेल के अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है. इस वजह से हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन जो है वो मूव करता है बाय एटीपी. बट इन रिस्पॉन्स टू दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बाहर जा रहा है इसके रिस्पॉन्स में एक पोटेशियम अंदर आता है. एक, क्योंकि एक कैटायन इज गोइंग आउट, वन पोटेशियम कम्स इन. सो दिस पोटेशियम अगेन कम्स इन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. ल्यूमेन में तो हाइड्रोजन पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि ल्यूमेन में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, इसीलिए पोटेशियम भी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर आता है. बट देन दिस पोटेशियम ईजिली गेट्स डिफ्यूज्ड आउट. हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकल जाता है, यानी एक हाइड्रोजन जब बाहर गया हाई टू लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर गया, तो उसके बदले में एक पोटेशियम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आया. बट फिर ये पोटेशियम सिंपल डिफ्यूजन से हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाहर चला गया. जब ये बाहर गया उसके बाद फिर ये पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आया और सिंपल डिफ्यूजन से बाहर गया, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर आया और सिंपल डिफ्यूजन से बाहर गया. ठीक. सो फॉर एवरी हाइड्रोजन आयन, ये हर हाइड्रोजन आयन, हर दफ़ा जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है तो एक पोटेशियम अंदर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और फिर सिंपल डिफ्यूजन से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाता है. देन देयर इज क्लोरीन. सो ये जो HCO3, जो बाइकार्बोनेट आयंस बच गए थे डिसोसिएशन के बाद, दिस बाइकार्बोनेट आयन लीव्स द पैराइटल सेल्स एंड एंटर इनटू द ब्लड. ये ब्लड में चले जाते हैं. एंड इन प्लेस ऑफ दिस बाइकार्बोनेट आयन, वन क्लोरीन एंटर्स फ्रॉम द outside the cell, enters into the cell. This chlorine moves by again by active transport. क्लोरीन भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर आता है और फिर सेल से बाहर चला जाता है बाय क्लोरीन चैनल्स, बाय सिंपल डिफ्यूजन. क्योंकि सेल के अंदर इन्वायरमेंट जो है वो हाईली नेगेटिव है, मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू द ल्यूमेन. इस वजह से क्लोरीन जो है वो आउटसाइड द सेल से तो सेल के अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, बट पैराइटल सेल से बाहर जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय क्लोरीन चैनल्स. सो लाइक दिस हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होके बाहर आ गया और क्लोरीन भी प्रोड्यूस होके बाहर आ गया. देन इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म HCl. सो पैराइटल सेल्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो इस तरह से HCl प्रोड्यूस करते हैं. Regulation of gastric secretion. There are certain substances, certain factors which regulate the gastric secretion. कब gastric secretion ज़्यादा हो और कब gastric secretion कम हो. The first phase for regulation of gastric secretion is the cephalic phase. पहला phase कहलाता है cephalic phase. Cephalic phase वो phase है जो शुरू होता है before we eat the food. Cephalic phase begins before we have eaten the food. इससे पहले कि हम food खाएं, उससे पहले cephalic phase starts and it gets activated. It activates the cells to start producing the secretion. Cephalic phase start होता है when we think about the food or when we smell the food or when we taste the food.
ये कंडीशंस जो हैं हमारे नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, और जब हमारे नर्व सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो या फिर हमारे जब हम स्मेल करते हैं तो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज़ में मौजूद हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और ये सारे कंडीशंस जो हैं वो हमारे नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब वेगल नर्व्स स्टिमुलेट होते हैं because of tasting the food or smelling the food or thinking about the food, or when we look at the food, these vagal nerves are stimulated. They stimulate the intrinsic nerves and the G cells. The intrinsic nerves produce acetylcholine. Acetylcholine stimulates chief cells and parietal cells. चीफ सेल्स अपनी सिक्रीशन करते हैं, पैराइटल सेल्स अपनी सिक्रीशन करते हैं, यानी HCl और पेप्सिन। और जब ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं तो प्रोटीन को जो प्रोटीन हमने फूड में लिया था उस प्रोटीन को डीनेचर करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब जी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है। जब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है तो गैस्ट्रिन जाके चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं और ECL सेल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। ECL सेल्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामीन जाके फिर से चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और ये चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स जब बार बार स्टिमुलेट होते हैं तो और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती जाती हैं, ताकि फूड जो है वो, अभी फूड हमने खाया नहीं है, अभी फूड स्टमक में पहुंचा नहीं है, लेकिन स्टमक में सिक्रीशंस पहले से प्रोड्यूस हो गई हैं, ताकि हमारा स्टमक जो है वो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी रहे। देन स्टार्ट्स द गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोटीन। वो प्रोटीन जो हमने फूड में खाया था, जब वो प्रोटीन उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, तो पेप्टाइड जो है यानी शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट एंड दे स्टिमुलेट्स द वेगल नर्व्स। ठीक, सो एक तो प्रोटीन जो हमने फूड में लिया था, वो प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है वेगल नर्व्स को। उसके अलावा डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक जब फिलअप होता है फूड से, जितना ज़्यादा स्टमक फिलअप होता जाएगा उसकी स्ट्रेचिंग होती जाएगी, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ये भी वेगल नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। सो डिस्टेंशन यानी स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक, देन कैफीन एंड अल्कोहल, दीज एक्ट एज स्टिमुलाई एंड दे स्टिमुलेट द वेगल नर्व्स एंड द इंट्रिंसिक नर्व्स एंड द जी सेल्स। जब वेगल नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो वो इंट्रिंसिक नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, जी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। These intrinsic nerves again they stimulate the acetylcholine, G cells produce acetylcholine, G cells produce gastrin। एसिटाइलकोलिन जब प्रोड्यूस होता है तो वो फिर से चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हों। गैस्ट्रिन जब प्रोड्यूस होता है तो वो भी चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और वो उसके अलावा वो ECL सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ECL सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है, फिर से हिस्टामीन जाके चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। इस तरह से बहुत सारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है। सेफेलिक फेज वो फेज था जो शुरू हुआ था जब हमने फूड नहीं खाया, बट जब हमने फूड खाना शुरू किया और हमारा फूड हमारे स्टमक में पहुंचना शुरू हुआ तो स्टमक में प्रोटीन्स आए। ठीक है, वो प्रोटीन्स जैसे ही पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुए, ब्रेक डाउन हुए और पेप्टाइड में कन्वर्ट हुए, तो वो पेप्टाइड जो है वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करता है और वेगल नर्व्स को और इंट्रिंसिक नर्व्स को और जी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा जब स्टमक फूड से फिलअप होना शुरू हुआ तो डिस्टेंड हुआ, यानी कि स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और फिर से ये नर्व्स जो हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हुए। सो गैस्ट्रिक फेज वो फेज़ है जो स्टार्ट होता है जब फूड हमारे स्टमक में पहुंच जाए, और गैस्ट्रिक फेज में मेजॉरिटी ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ज़्यादातर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही हैं यानी कि HCl और पेप्सिन, वो गैस्ट्रिक फेज में प्रोड्यूस हो रही हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द सिक्रीशंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द गैस्ट्रिक फेज। ठीक, सो ये जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं बार बार चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं और वो
गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करता जाता है। जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते जाते हैं उतना ज़्यादा फूड जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा और काइम में कन्वर्ट होगा, और जब काइम में कन्वर्ट होगा तो ड्यूडेनम में एंटर होगा ताकि स्टमक जो है वो एम्प्टी होता जाए। देन once the stomach starts emptying, the third phase starts. This is the inhibitory phase. थर्ड जो फेज है उसमें इनहिबिशन हो रही है। इनहिबिशन occurs firstly when there is removal of the proteins and when there is no distension. फूड डाइजेस्ट होना शुरू हुआ स्टमक में तो काइम बना, और जब काइम बना तो डियोडेनम में जाने लगा। जब स्टमक एम्प्टी होने लगता है, यानी स्टमक में प्रोटीन्स भी कम हो गए और स्टमक की डिस्टेंशन भी कम हो गई, फूड ख़त्म हो गया तो नहीं डिस्टेंडेड होगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जब स्टमक की डिस्टेंशन ख़त्म हो गई तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं हुए, प्रोटीन्स ख़त्म हो गया तो वेगल नर्व्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, सो इनहिबिशन शुरू हो जाएगी। जब ये नर्व्स, ये इंट्रिंसिक नर्व्स, जी सेल्स और ये वेगल नर्व्स इनहिबिट होंगे, यानी इनको स्टिमुलेट करने वाला कोई नहीं होगा, तो आगे फर्दर स्टिमुलेशन नहीं होगी, ना गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगी, ना वो हिस्टामीन को, ECL सेल्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, हिस्टामीन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी कम होने लगेंगी क्योंकि पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला कोई नहीं है। ठीक, so this is inhibitory phase. Inhibitory phase occurs when there is no proteins in the stomach and when the stomach is not distended, when the stomach starts emptying. Secondly, inhibitory phase कब होता है? Because of the accumulation of acid. Especially this accumulation of acid, this inhibitory phase occurs especially in the antrum and the duodenum. ये जो फेज़ है ये स्पेशली डियोडेनम में होता है। जैसे हमने पहले कहा था एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक में, हमने कहा था कि जब डियोडेनम में एसिड हो, एसिडिक काइम आ जाए और एसिडिटी हो जाए, तो वो एसिडिटी जो है डी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और डी सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं सोमाटोस्टैटिन, और सोमाटोस्टैटिन जब स्टिमुलेट होता है, जब प्रोड्यूस होता है, तो सोमाटोस्टैटिन इनहिबिटरी सब्सटेंस है। This somatostatin inhibits the parietal cells, the G cells and the ECL cells. ये बजाय उनको स्टिमुलेट करने के उनको इनहिबिट करता है, उनकी स्टिमुलेशन को रोकता है। ठीक, जब ये इनहिबिट होते हैं तो पैराइटल सेल्स भी अपनी सिक्रीशन नहीं कर पाते, यानी कि HCl नहीं प्रोड्यूस होता। G सेल्स जब इनहिबिट होते हैं तो फिर वो भी आगे से चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाता। जब वो स्टिमुलेट नहीं होते तो फिर सिक्रीशंस नहीं कम होती हैं। ECL सेल्स इनहिबिट होंगे तो हिस्टामीन नहीं होगा, हिस्टामीन नहीं होगा तो चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कोई नहीं होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो हैं वो कम होती जाएंगी। सो व्हेन देयर इज एसिडिटी इन द डियोडेनम एंड द एंट्रम, जब एसिडिटी बढ़ जाए तो इनहिबिशन होने लगती है। जब इनहिबिशन होने लगती है, ये सेल्स स्टिमुलेट नहीं हो रहे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम हो गई, तो एसिड ऑटोमेटिकली कम हो गया क्योंकि अब पैराइटल सेल्स नहीं एक्टिवेट हो रहे, तो एसिड सिक्रीशन कम हो गई। जब एसिड कम हो गया तो इन्वायरमेंट जो है, जो हाईली एसिडिक हो गया था, वो ख़त्म हो गया। जैसे ही एसिडिक काइम डियोडेनम में या एंट्रम में एसिडिटी कम होने लगेगी, फिर वापस से सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। देन देयर आर दीज फैक्टर्स, जैसे कि हमने पहले कहा था, वो फैक्टर्स जो कि डियोडेनम स्टमक की एम्प्टिंग पे डिपेंड करते हैं। डियोडेनम के फैक्टर फैट एंड एसिड, हाइपोटेनिसिटी एंड डिस्टेंशन, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें जब डियोडेनम में होती हैं, यानी डियोडेनम में अगर फैट होगा बहुत सारा, तो वो इनहिबिशन के इनहिबिटरी एक्शन करेगा। इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट दी सेल्स टू स्टॉप द सिक्रीशन। एसिड होगा जब डियोडेनम में, इनहिबिशन होगा, ये सेल्स जो हैं वो इनहिबिट होंगे और सिक्रीशन कम होती जाएगी। जब डियोडेनम डिस्टेंडेड होगा तो डियोडेनम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा फूड अकोमोडेट कर सके, तो ये जो सेल्स हैं ये इनहिबिट होंगे और सिक्रीशन कम होती जाएगी। ठीक, ताकि स्टमक की एम्प्टिंग कम हो सके। जब स्टमक की एम्प्टिंग कम होगी तो डियोडेनम पहले पिछला फूड यानी कि फैट को डाइजेस्ट करेगा और एसिडिटी कम करेगा। जब डियोडेनम फिर से डियोडेनम में
स्पेस बन जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी, तो फिर से स्टमक और फूड स्टमक से डिओडरम में आना शुरू होगा। ये जो एंटेरोगैस्ट्रोन्स हैं, कोलसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन, वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर। जब हम पैंक्रियास की बात करेंगे तो फिर हम इसकी भी बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टमक। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो हम दूसरी वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।